पटियाला पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की राष्ट्रीय मीटिंग शुरू हुई है, जिसमें भारत के सभी राज्यों के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर आए हैं और 2 दिन में 2 करोड़ हिंदुओं की चिंता, अर्थात उनमें से कोई भूखा नहीं रहेगा, उनको अन्न दिया जाएगा, उनमें गरीब को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर दिया जाएगा, पैसे नहीं हैं तो उनको फ्री में एडवोकेट दिया जाएगा, महिलाओं को सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी और बच्चों की टैलेंट बढ़ाने का शिक्षण दिया जाएगा और 24 घंटे उनकी मदद के लिए हिंदू हेल्पलाइन होगी। ऐसे ही एक बहुत बड़ी योजना यहाँ पर लेकर आगे बढ़ने वाले। कार्यकारी प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद पंजाब, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा हिंदू सम्मेलन, अखिल भारतीय हिंदू सम्मेलन पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ। ਸੁਧੀਰ ਕੱਕੜ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਪਟਿਆਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਭਾਈ ਤੋਗੜੀਆ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਵਿਜੇ ਕਪੂਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 15/9/1990, 15/5/91, 4 ਮਾਰਚ 1992, 90, 91, 92 ਚ 3 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ हैं। ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। 2 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਆਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਕੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਆਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਮੇਰੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਵੱਜੀ ਆ, ਆਹ ਵੱਜੀ ਆ ਗਰਦਨ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ? ਰਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੀਜੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੈਨਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹੇ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਆਨਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਅਸਲ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 84 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਏ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹਾਂ। ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਸੀਟਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ MBBS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਗਲ ਸੀਟ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਿਤ ਕੋਟੇ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੀਟ। ਲੇਕਿਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਿਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ SDM ਵੱਲੋਂ 4 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਗਏ हैं अलग-अलग टैक्स से कि ਜਿਹੜੇ 3/15/90, 15/5/91, 4 ਮਾਰਚ 92 तीनों ਅੱਤਵਾਦ पीड़ित मतलब के दरमियान होंगे ਉਹਦੇ SDM ਵੱਲੋਂ सर्टिफिकेट भी जारी करे गए हैं, लेकिन वो बेनीफिट इसलिए नहीं मिलिया क्योंकि तुसी जिंदा बच गए हो, तुसी वो ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ मरे नहीं, इस करके थानू ਅੱਤਵਾਦ पीड़ित परिवार नहीं मन्या जाता। हमारे इस भारतीय आर्यावर्त देश को
सुशील कुमार, संगठन महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, जम्मू कश्मीर लद्दाख। जम्मू कश्मीर सर्वविदित है कि पिछले 70 वर्षों से और एक संघर्ष के भीतर जूझ रहा है और राष्ट्रीय और अराष्ट्रीय समाज के बीच, राष्ट्रवादी और अलगाववादियों के बीच एक लंबा संघर्ष जो है वहां लड़ा जा रहा है, जिसमें जो राष्ट्रवादी समाज है, जो हमारा भारत का हिंदू समाज है और विशेषकर जम्मू कश्मीर का जो हिंदू समाज है, वो पूरा संघर्ष अपना तन मन धन लगा करके और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से वो संघर्ष कर रहा है। अलगाववादी तत्वों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, देश विरोधियों के खिलाफ। लेकिन विडंबना दे रही है कि जम्मू में जो सरकारें रही हैं वो सब कश्मीर बेस्ड सरकारें रही हैं और आतंकवाद प्रस्त आतंकवादियों को पालने वाली, उनको पोसने वाली, उनको जन्म देने वाली वो सरकारें रही हैं और कांग्रेस का उनको समर्थन रहा है, जिस कारण वहां का जो राष्ट्रीय समाज है, वहां का जो हिंदू समाज है, वो आज तक पिसता चला आ रहा है। वर्तमान में भी देखें, जहां भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार भी रही है, भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बहुत बड़ा गलत निर्णय वहां किया कि वहां जो बिल्कुल जो हिंदू विरोधी सरकार है, जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी, और उसके साथ उन्होंने जो वहां की उनके साथ मिलाकर के सरकार बनाई, वो भी हिंदुओं के विरुद्ध गई और उन्होंने भी वहां हिंदुओं की सुरक्षा ना करके कश्मीर घाटी को हिंदू शून्य करने का काम किया है। ऐसे में आज जब वहां का हिंदू समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, संपूर्ण देश का जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है, आज वहां जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के साथ खड़ा है और वही रणनीति यहाँ पंजाब की इस क्रांतिकारी धरती पर यहाँ हमारे केंद्रीय अधिकारी और देश के समस्त अधिकारी बैठ के बना रहे हैं कि हिंदुओं को जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस नीति यहाँ से बना करके जाएगी। कश्मीर में हिंदुओं की हत्याएं मैं कह रहा हूँ 1947 से हो रही हैं और अभी तो देश के राष्ट्रवादी समाज ने मोदी जी को इसीलिए सत्ता में बिठाया था कि आते ही कश्मीर घाटी से जो विस्थापित हिंदू है, सबसे पहला काम ये होना चाहिए था कि उसको पुनः घाटी में उसका पुनर्वास किया जाना चाहिए। और ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद पिछले 4 वर्षों से लगातार डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में मांग कर रही है कि जो कश्मीर घाटी से 3.5 लाख 4 लाख हिंदू उस समय 89 में विस्थापित हुआ, आज वो संख्या और 6-7 लाख तक हो गई है, उसका पुनर्विस्थापन वहां, उसका पुनर्वास जो है वो वहां होना चाहिए। उसके लिए केंद्र सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए। केवल धारा 370 हटा करके 35 से हटा करके ठीक है, इसका लाभ साइकोलॉजिकली वहां के हिंदुओं को मिला है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जब तक कश्मीर से जो विस्थापित हिंदू है उसको वहां पुनः बसाया नहीं जाएगा, तब तक समस्या का हल नहीं होगा। है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्थितियां हैं, आज तो केंद्र सरकार के अधीन है, गवर्नर शासन वहां पर लागू है, उसके बावजूद भी वह टारगेट किलिंग हो रही है। चुन चुन करके धर्म के आधार पर लोगों को सरकारी दफ्तरों के अंदर मारा जा रहा है और उसके बाद जब वो सुरक्षा की मांग को लेकर धरने पर लोकतांत्रिक पद्धति से बैठे हैं तो केंद्र सरकार उनका वेतन रोक देती है। वर्तमान में हिंदुत्ववादी सरकार में आज वह हिंदू भी विस्थापित होने को विवश है जो 90 के दशक में नहीं हुआ। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि भारत कांग्रेस मुक्त हुआ है, लेकिन भाजपा कांग्रेस युक्त होती दिखाई दे रही है। भाजपा में कांग्रेसीकरण, भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया है। भाजपा जिन नीतियों के कारण सत्ता में हम लोगों ने लाई थी वो ये थी कि वो पहले आकर के हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में सोचेगी, लेकिन वो सबसे पहले आते उसने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो जीतने की जो बात कर रही है। विश्वास तो महात्मा गांधी ने जीत पाए, तो ये मोदी जी और अमित शाह जी कैसे विश्वास जीतेंगे? उसी विश्वास जीतने के चक्कर में ये हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और सिलेक्टिव किलिंग जो हो रही है और कश्मीर को हिंदू शून्य करने का जो साजिश ये जो रची जा रही है, मैं तो कहता हूँ कि केंद्र सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए और जो सबका विश्वास का जो चक्र है इससे बाहर आना चाहिए और हिंदू समाज को गुमराह नहीं करना चाहिए। आज आप पंजाब की धरती पर खड़े हैं, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने और गुरुओं ने इस्लाम से एक लंबा संघर्ष किया है। इवन गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता स्वयं का और अपने 4 बेटों का बलिदान दिया है। आज वही मोदी जी और योगी जी को हिंदुओं ने अपने वोट से पोषित करके सत्ता में पहुंचाया है, वह आज विश्वास जीतने में लगे हैं। तो मुझे क्या लगता है इसके बारे में आपका क्या विचार? बिल्कुल आपका कहना सत्य है। पंजाब की धरती क्रांतिकारियों की धरती है, राष्ट्रभक्तों वीरों की धरती है और आज इस धरती पर 2 भाइयों में आपस में फूट डालने का बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। कुछ देश विरोधी शक्तियां,
कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि जो हमारे गुरुओं ने, गुरु परिवारों ने अपना बलिदान दिया है, उनका बलिदान यह समाज कभी निरर्थक नहीं जाने देगा। सत्ता तो आती जाती है, लेकिन जिस इच्छा को लेके और जिस मंशा को लेके हमने सत्ता में इन लोगों को पहुंचाया था, हमारे लोगों ने अपने बलिदान दिए, पंजाब पूरे देश के लोगों ने बलिदान दे करके आज सत्ता में इसलिए बिठाया कि इस देश का जो राष्ट्रीय समाज है, जो हिंदू, सिख, जैन जो समाज है, उसकी रक्षा हो सके। लेकिन ये रक्षा करने में कहीं ना कहीं सरकार नाकाम सिद्ध हो रही है। पंजाब के अंदर भी पिछले दिनों कितने हिंदू नेताओं की यहाँ हत्या हो रही है। यहाँ के हिंदुओं को न्याय जो है वो नहीं दिया जा रहा है। 30 साल हो गए, यहाँ के कार्यकर्ताओं की वेदना सुनने से हमारे आंखों में आंसू आते हैं। जो माताओं की गोदें सूनी हो गई, आज वो परिवार इनसे न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के टेबल तक भी फाइल जाने तक वो न्याय पंजाब के हिंदुओं को आज तक नहीं मिल रहा। इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है और इसीलिए आज देश का समाज डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया की तरफ जो हिंदू समाज है एक आशा भरी नजरों से देख रहा है और देश का समस्त युवा शक्ति, जो राष्ट्रभक्त शक्ति है, जो राष्ट्रीय समाज है, हिंदू सिख समाज है, वो आज डॉक्टर प्रवीण भाई के नेतृत्व में चलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। 35,000 हिंदू भी पीड़ित हुए थे, परिवार पीड़ित हैं, उनको अभी तक सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया। कश्मीर में एक आतंकवादी मरता है, एक उग्रवादी मरता है, जो पाकिस्तान प्रस्त है, उसके परिवार को रिहेबिलिटेट करने के लिए सरकार 50-50 लाख रुपया देती है, उनके बच्चों को नौकरियां देती है। लेकिन पंजाब के अंदर हमारे हिंदू भाई, सिख भाइयों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार पाकिस्तान के इशारे पर हुए, आज उनके परिवार बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है केंद्र सरकार। कार्य देख रहे हैं, आपका कार्य क्षेत्र पंजाब भी रहा है जब आप सर्विस में थे, तो आप वर्तमान परिस्थितियां जो देश के अंदर हैं, विशेष रूप से कश्मीर में, वहां आतंकवाद कैसे समाप्त हो सकता है, एक पूर्व सैनिक और वर्तमान में एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता के नाते किस दृष्टि से देखते हैं? मैं वीरपाल शर्मा, पूर्व सैन्य अधिकारी, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का मेरठ प्रांत का कार्यकारी अध्यक्ष। मेरा सेना में का जो अनुभव है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का जो मिशन ये चल रहा है कि हिंदू किस तरह से बचेगा, तो कश्मीर घाटी में हिंदू इस तरह से बचने का मेरा एक सुझाव है। केंद्र सरकार अगर उसको मानेगी तो यह है, हिंदू भी बचेगा, देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा। हमारा सरकार से सुझाव है कि सरकार अगर किसी सैनिक की जो सर्विस है वो 20 साल है, 22 साल से 5 साल पहले उसको कश्मीर घाटी में वेपन आर्म सबनेशन और उसको हैबिटेट लेकर वहां पे स्थापित कर दिया जाए और उसके परिवार को भी वहां रहने की अनुमति दी जाए, तो पूरी कश्मीर घाटी को कोऑर्डिनेट कर दिया जाएगा। और उग्रवाद तो क्या, पाकिस्तान का बच्चा भी वहां पर आने से कतराएगा। यह ही एक विकल्प है। नागरिकों की, बल्कि इस देश के अंदर सैनिकों की भी हत्याएं आम बात है। और मेरी जानकारी के अनुसार जो समाचार पत्र, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखता हूं कि जब भी सैनिकों की हत्या इस देश के अंदर होती है तो मारने के पीछे सरकार और सेना को क्या योजना बनानी चाहिए, इस विषय में आपका क्या दृष्टिकोण है? मेरा दृष्टिकोण ये, सेना में रहते हुए मेरा अनुभव रहा है, कारगिल और ऑपरेशन पराक्रम में हम वहां रहे हैं, तो इनको सैन्य क्षेत्र से कम 10 किलोमीटर हटा दिया जाए। जी, जिन्होंने लंबे समय तक एक सैन्य अधिकारी के रूप में सेना में काम किया है और आज इस देश की अखंडता, एकता को बचाने के लिए, इसके अस्तित्व को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्य देख रहे हैं। मैं विवेक मिश्रा नाहिल।